بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو موت کی سزا سنائی ہے۔ یہ وہی عدالت ہے جس کو شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ نے 1971 کے بعد قائم کیا تھا، اور اس عدالت کے ذریعے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے کئی سینئر رہنما کو، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، کئی سینئر رہنما کو موت کی سزا سنائی گئی، ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اور اب اسی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو بھی تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بھارت سرکار سے مطالبہ کیا ہے بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت نے کہ وہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے تاکہ اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ یہ خبر آپ جان چکے ہیں، کل سے خبر چل رہی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے، لیکن اس کا پورا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کیا شیخ حسینہ واجد کو اپنے کیے ہوئے کرموں کی، اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ یہی شیخ حسینہ ہے جس نے سال 2009 کے بعد کنٹینیو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کئی سینئر رہنماؤں کو جیل سے نکال کر تختہ دار پر لٹکا دیا، اور پوری دنیا اس کا ویرودھ کرتی رہی، مخالفت کرتی رہی۔ شیخ حسینہ واجد سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ تم ان بزرگوں کو، ان رہنماؤں کو جیل میں ہی بند رہنے دو، انہیں تختہ دار پر مت لٹکاؤ، لیکن شیخ حسینہ کسی کی نہیں سنتی ہے، وہ انا کا شکار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں، ان سب کو پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی دے دی جاتی ہے، اور آج خود شیخ حسینہ کی پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی تقسیم ہوئی۔ دراصل 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان دو حصوں میں بنا تھا۔ انڈیا کے ویسٹ میں ایک پاکستان تھا، اور ایک پاکستان انڈیا کے ایسٹ میں، جس کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے ان دونوں علاقوں کی آپس میں کوئی سرحدیں نہیں مل رہی تھی۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان کا علاقہ بنگلہ دیش بن جاتا ہے، اور جب بنگلہ دیش کے قیام کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران تھے، ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہ ہو، یہ ایک ملک رہے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ جب 1971 میں بنگلہ دیش باضابطہ ایک ملک بن گیا، دنیا کے کئی ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا، یونائٹڈ نیشن نے بھی بنگلہ دیش کو ایک ملک کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے دوران بنگلہ دیش کے خلاف کام کیا، پاکستان کو سپورٹ کیا، پاکستان کی آرمی اور فوج کو سپورٹ کیا، ان سب کو سزا دی جائے گی۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے اپنا کام کیا، اور جماعت اسلامی یا دوسرے کئی اہم ترین رہنما کو، ان لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی، عمر قید کی سزا سنائی گئی، ان سب کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ 2009 میں شیخ حسینہ واجد جب بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی تو انہوں نے انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل کو دوبارہ ایکٹیو کیا، اور ایسے کئی رہنما جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی یا دوسری سزا سنائی گئی تھی، ان سب کو دوبارہ موت کی سزا سنائی گئی، اور انہیں یکے بعد دیگرے کنٹینیو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اس میں ایک بہت ہی اہم نام ہے عبدالقادر مولا کا، جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما تھے، اور انٹرنیشنل کرائم ٹریبونلز کے فیصلے کی بنیاد پر سال 2013 میں عبدالقادر مولا کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ دوسرا نام ہے محمد قمر الزماں کا، یہ بھی جماعت اسلامی کے سینئر رہنما تھے، ان کو بھی سال 2015 میں انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل کے فیصلے کے مطابق تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تیسرا نام ہے مطیع الرحمان نظامی کا، یہ جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، صدر تھے، ان کو بھی سال 2016 میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے نام ہیں جن کو لگاتار پھانسی کی سزا سنائی گئی اور تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اور شیخ حسینہ کا یہ جو ظلم تھا، شیخ حسینہ کا جو اتیاچار تھا، وہاں کے لوگوں کو اندر سے بھڑکا رہا تھا، لیکن وہ سب منتظر تھے کسی مناسب موقع کا۔ وہ سڑکوں پر نکل کر ویرودھ کرتے تھے، اور ان پر گولیاں چلائی جاتی تھی، پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ شیخ حسینہ واجد نے
वहाँ की जमहूरियत को अमरीत में तब्दील कर दिया था। कोई भी इलेक्शन वहाँ फेयर नहीं हो रहा था। हर इलेक्शन में अकेले शेख हसीना वाजिद और उसकी पार्टी जीत रही थी। खालिदा जिया या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको ज़र्रा बराबर जीत नहीं मिल पा रही थी। फिर वहाँ के नौजवानों का, वहाँ के यूथ का, स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़कता है और जून में, जुलाई में लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, प्रोटेस्टर को ख़त्म करने के लिए, प्रोटेस्ट को कलअदम करने के लिए शेख हसीना तमाम हदों को पार कर जाती है। पुलिस को, आर्मी को हथियार चलाने का आदेश देती है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमला होता है। ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। जून, जुलाई से अगस्त तक जो प्रोटेस्ट चलता रहा बांग्लादेश में साल 2024 में, उस प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने फायरिंग की, आर्मी ने फायरिंग की, तो बांग्लादेश में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन प्रोटेस्टर ने, मुजाहिरीन ने हौसला नहीं हारा, जिंजी ने हिम्मत नहीं हारी। इनका प्रोटेस्ट जारी रहा। ये गोलियां खाते रहे, ये मरते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। और फाइनली 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। शेख हसीना वाजिद को आर्मी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया में आकर पनाह लेनी पड़ती है। शेख हसीना वाजिद के घर तक पहुंच जाते हैं मुजाहिरीन, प्रोटेस्टर, पूरे घर को लूट लिया जाता है, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद एक अबूरी हुकूमत कायम होती है, इंटरिम सरकार बनती है बांग्लादेश में। शेख यूनुस को उसका वज़ीर आज़म बनाया गया। बांग्लादेश में ये जो पूरा इनकलाब आया था, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट में सबसे नुमाया किरदार अदा कर रहे थे वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के यूथ, और इन सब के पीछे जमाती इस्लामी थी। जमात इस्लामी को 1971 से लगातार दबाया गया, कमज़ोर किया गया। शेख हसीना वाजिद को लगा कि उसने जमात इस्लामी को ख़त्म कर दिया है। तमाम रहनुमाओं को तख्ते दार पर लटका कर उसने जमात इस्लामी की कमर को तोड़ दिया है। लेकिन जमात इस्लामी ने इस दौरान बहुत खामोशी के साथ मेहनत की, चुपके चुपके से एक इनकलाब बर्पा किया, यूथ को अपने साथ मिलाया। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो टीम थी, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, उन सबको जमात इस्लामी ने अपने साथ मिलाया। और जमात इस्लामी की तलबा ऑर्गेनाइजेशन ने, दूसरी तंजीमों ने ग्राउंड पर जिस तरह काम किया, उसका नतीजा यह हुआ कि साल 2024 में वहाँ एहतजाज की शुरुआत हुई। मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और पुलिस और आर्मी की गोलियां खाने के बावजूद उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अवामी लीग की हुकूमत का खात्मा हो गया। शेख हसीना वाजिद को इंडिया आकर पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद अब बांग्लादेश में अभी अबूरी हुकूमत है, बाज़ाब्ता सरकार वहाँ नहीं बन सकी। लेकिन जब ये अबूरी हुकूमत बनी तो इस सरकार ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते और ताल्लुकात को कम कर दिया है, चीन के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना शुरू कर दिया है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो आपस में सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, ज़ुबान की बुनियाद पर, तहज़ीब की बुनियाद पर लड़ाई शुरू हुई थी। और इसी ज़ुबान की बुनियाद पर शुरू होने वाली लड़ाई पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुका था। दोबारा बांग्लादेश और पाकिस्तान में मोहब्बत शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, ये दोनों इंडिया के ख़िलाफ़ यूनाइट होने की कोशिश भी करते हैं। और अब उसी बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स, जिसको अवामी लीग ने कायम किया था, जिसके ज़रिए शेख हसीना वाजिद ने जमाती इस्लामी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया सज़ाए मौत का, उसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स की दोबारा तश्कील दी जाती है। उसी ट्रिब्यूनल में दोबारा शेख हसीना वाजिद का मुकदमा शुरू होता है और इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को मौत की सज़ा सुनाई है। उसके अलावा बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान ख़ान को भी मौत की सज़ा सुनाई है। शेख हसीना वाजिद इंडिया में मौजूद है, ये सभी को पता है, लेकिन असदुज़्ज़मान ख़ान कहाँ रोपोश है, कहाँ छुपा हुआ है, ये किसी को पता नहीं। उसके अलावा पुलिस IG जो बांग्लादेश का था, उसको भी मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसने पहले ही सरेंडर कर दिया। उसने सरकारी गवाह बनकर मुकम्मल सबूत पेश किया कि किस तरह शेख हसीना वाजिद ने अवाम को मारने का आदेश दिया। और उसके बाद फ़ैसला सुनाए जाने के वक्त वो भी अदालत में मौजूद था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी गवाह बन जाने की वजह से उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों को मौत की सज़ा सुनवाई थी, उन्हें तख्ते दार पर लटकाया था, आज वही हाल
शेख हसीना वाजिद का हो चुका है। शेख हसीना वाजिद का कहना था कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने 900 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को, बंगालियों को मौत के कटहरे में खड़ा किया था। उनको इन लोगों ने मारने का काम किया था। इनकी वजह से बेगुनाह शहरी मारे गए थे और आज इनको भी मारा जाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ सबूत पेश किया गया शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, जो रिपोर्ट आई है बांग्लादेश की मीडिया के ज़रिए, उसमें बताया गया कि इन्होंने कई मरतबा नौजवानों पर फायरिंग करने का आदेश दिया। अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलवाई और उसका नतीजा ये हुआ। दूसरी तरफ शेख हसीना वाजिद ने इस फैसले को गलत करार दिया है। इस फैसले को उन्होंने इंतकामी फ़ैसला बताया और कहा जा रहा है कि ये जो फ़ैसला है अवामी लीग को कलअदम करार देने की, ख़त्म करने की कोशिश है, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ अवामी लीग जो बांग्लादेश में मौजूद है उसने लगातार एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। कल यानी 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स का फैसला आया था शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ और आज दूसरे दिन 18 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में अवामी लीग ने शट डाउन का ऐलान कर दिया है। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को मुल्क गिर प्रोटेस्ट और एहतजाज करने का, यानी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने का बांग्लादेश में अवामी लीग ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत ने सिक्योरिटी के निज़ाम को सख्त कर दिया है। हर तरफ वहाँ आर्मी को और पुलिस को लगा दिया गया है ताकि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे या मुल्क में किसी भी तरह का खून खराबा अंजाम न दिया जा सके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द अमल भी सामने आया है। यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ इतना कहा कि शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो फांसी का फ़ैसला सुनाया गया है उस पर हमें अफसोस है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस फैसले को गलत नहीं ठहराया है, न ही ह्यूमन राइट्स की किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले को गलत ठहराया है, क्योंकि 1400 लोगों के कत्ले आम का इल्ज़ाम लगा था शेख हसीना वाजिद पर और अब बाज़ाब्ता इस जुर्म को साबित कर दिया गया। बांग्लादेश की अदालत में शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जब जजेस ने यह फ़ैसला सुनाया तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाई। आप इस वीडियो को देखिए। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. आपने देखा कि जब शेख हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो कोर्ट रूम में मौजूद तमाम लोग तालियां बजाने लगते हैं, वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि शेख हसीना वाजिद को उनके किए की सज़ा मिली है और सही फ़ैसला है। दूसरी तरफ बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात मौजूद थे। अब देखना यह है कि शेख हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जब से अवामी लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, उबरी हुकूमत बांग्लादेश में बनी है, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी कंटिन्यू ख़राब चल रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ये रिश्ता ख़राब हो चुका है। बांग्लादेश की सरकार का मुसलसल मुतालबा है भारत सरकार से कि वो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे और भारत सरकार बांग्लादेश के इस मुतालबे को लगातार रिजेक्ट कर रही है, मना कर रही है और अभी तक भारत सरकार ने बांग्लादेश के इस मुतालबे को सीरियस नहीं लिया है। ये बात यकीनी है कि अगर बांग्लादेश के हवाले कर दिया गया शेख हसीना वाजिद को तो फांसी की सज़ा हो जाएगी या कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार हमेशा शेख हसीना वाजिद को अपने यहाँ रखेगी या फिर वो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर देगी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का इन्हिसार भी इसी पर है कि शेख हसीना वाजिद को हवाले किया जाता है या नहीं किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।